हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में टेलर्स सीरीज मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर एंड लीनियर टाइप। सो टुडे वी विल सॉल्व द इट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेलर्स सीरीज मेथड। वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट विद द एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट the Taylor series method. So numerical solution we will find out of first order differential equation by Taylor series method. And now we know that the expansion of Taylor series about x equals to a, that is given by, it is a formula, just remember it is already proved, f of x equals to f of a, x minus a f dash of a plus x minus a square by 2 factorial f double dash of a plus x minus a cube by 3 factorial f triple dash of a plus so on. If I generalize the term, I can write that as a x minus a to the power n upon n factorial. It is nth derivative at x equals to a. Okay, so this is the Taylor series expansion about x equals to a. But this formula will not use. We will use the expansion of Taylor series about x equals to 0. That is about origin. We say. So if I put the a is equal to 0 here, so this formula will be reduced to what is it? f of x equals to f of a यहाँ पे है, a के जगह पे आप 0 पुटअप कर देंगे, यहाँ भी आप 0 पुटअप करेंगे, यहाँ भी 0 पुटअप करेंगे, तो हमें मिलेगा x f dash of x. I put the 0 here, so I will get x square by 2 factorial f double dash of a plus it goes so on likewise. ठीक है, so ये जो सीरीज मिली है, this is also known as a Taylor series which is expand in powers of it is what? x. Okay, and about it is a equals to x equals to 0 we can say. Okay, and this is more precisely also called as the Maclaurin series. It is well known as a Maclaurin series. Now we will use this series to find out the solution of differential equation in series form. Okay, तो जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं टेलर सीरीज मेथड से, तो हमको जो सोल्यूशन मिलता है वो सीरीज फॉर्म में ही रहेगा. ओके, और देखिए ऑलरेडी हमने देखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने लिया हुआ है. सो आई कैन रिप्लेस दिस f बाय y. तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास फॉर्म कैसा बन जाएगा फॉर्मूले का? देन it is y equals to y of x. I just replace the f by it is y of x. मैं y of x को y लिख सकता हूँ, which is equals to it is what? f के जगह पे y लिखा, y of 0. It is f dash of 0, यहाँ पे लिख दिया y dash of 0. यहाँ पे f double dash of 0, यहाँ लिख दिया y double dash of 0. Likewise, just we have replaced it is f by y, and we will use this formula in our solution of the differential equation. Okay, so in sometimes they will ask you just find out the solution. तो आपको अगर solution पूछा है तो जनरली आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालिए और वहां तक सॉल्यूशन निकालिए. और जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो एटलीस्ट 3 टर्म्स शुड बी प्रेजेंट इन द सीरीज. कम से कम 3 टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए. या समटाइम दे आस्क यू दैट इज फाइंड आउट द सॉल्यूशन अप टू द 4 टर्म्स. अगर 4 टर्म्स पूछा है तो देखिए इट इज 1 2 3 4, मतलब तब भी आपको थर्ड डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करना है. ओके, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दिस डेरिवेटिव्स वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 0 दैट बिकम 0. अगर वो 0 होती है मतलब आपको सामने के डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सामने का टर्म आपको कंसीडर करना पड़ेगा. दैट इज x टू द पावर 4 by 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0. वो हमको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर 0 आते हैं तो. अगर नहीं आए तो दिस इज द 4 टर्म्स वी आर हैविंग. ओके, 4 टर्म्स तक 5 टर्म्स तक कुछ था एग्जामिनेशन में. फाइंड आउट द सीरीज सॉल्यूशन अप टू द 4 टर्म्स और 5 टर्म्स. ओके, so let us start our example. And just I tell you the one more thing, there is this, so already I have told you that this Taylor series gives a solution in terms of series form, and as well as this method is used to solve the linear and non-linear differential equation, which is a specialty. Okay, and we will get here at the end the numerical solution as well by using this Taylor series method. So let us start the example. I am having the example as if dy by dx equals to 1 by 2 y square plus xy square. This is the first order first degree differential equation, and given that y of 0 equals to 1, this is called as the initial condition. This means that y value is 1 when x is 0. This is our x because y is a function of x, so we can say that x is 0, y is 1. This is given, ये हमको लगता है फॉर्मूले में. ओके, कब फॉर्मूले में लगता है? यहाँ पे देखिए y of 0 यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. ओके, आफ्टर दैट हमको देखो y डैश ऑफ 0 भी निकालना पड़ता है. y डैश ऑफ 0 अगर निकालना है तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर आपको x इक्वल्स टू 0 पुटअप करना पड़ेगा. आपको y डैश ऑफ 0 आएगा
y डबल डैश ऑफ जीरो भी निकालना है, मतलब आपको फिर से सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड x इक्वल्स टू जीरो पुट अप करना पड़ेगा। लाइकवाइज वी हैव टू गो सो ऑन, ठीक है। तो हमें अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालने पड़ेंगे। सो आई जस्ट राइट ऑन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू 1/2 y square plus xy square। नाउ वी नो दैट dy by dx कैन बी रिटन एज इट इज व्हाट y डैश, तो इसको y डैश लिख दिया हमने और ये एज इट इज है। Now after this we do the successive differentiation with respect to the x। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं with respect to the x, तो मुझे y का डेरिवेटिव मिल जाएगा y डबल डैश, ओके, प्लस दिस 1/2 is as it is। Now we will find out it is y square डेरिवेटिव। y square का डेरिवेटिव क्या होगा? It is 2y और बाद में y का डेरिवेटिव is what? y डैश। We are using the chain rule of differentiation। तो पहले हमने y square का डिफरेंशिएशन किया, it is 2y, बाद में y का किया, it is what? y डैश प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं हमको, एक है x और एक बार y स्क्वायर, तो हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अभी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके, या वाइस वर्सा आप कैसा भी ले सकते हैं। तो मैं x को पहला फंक्शन लेता हूँ, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं y स्क्वायर। अभी देखा y स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2y y डैश, देन प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 that is as it is, okay, and then y square is here as it is, okay, x को डेरिवेटिव 1 यहाँ पे और y square हमने as it is लिख दिया। I suppose differentiation is clear to you, okay, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड देन सेकंड as it is। Now after that we just first of all find out all the derivatives और बाद में हम इन सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं या अदरवाइज 2 को बाहर निकाल लीजिए, हम बाद में फिर कैलकुलेशन देख लेंगे। सो इफ आई टेक द 2 आउटसाइड दैट इज दिस इज रिटन एज 2x y and y dash, okay। Now after that again do the differentiation with respect to the x, I will get y triple dash। अब वो कैसे आएगा? 1/2 as it is, फिर से यहाँ पे देखो 2y y dash है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, फिर से अप्लाई करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। सो आई टेक द 2y एज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज रिटन एज इट इज, देन द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस बाद में फर्स्ट का डेरिवेटिव 2y का डेरिवेटिव इज व्हाट? 2y डैश, देन y डैश विल बी एज इट इज, ओके, प्लस नाउ दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। आई सपोज इट इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन दिख रहा है, इट इज x y एंड y डैश। अब 3 का है तो हम क्या करते हैं, 2x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और y और y डैश को सेकंड फंक्शन लेते हैं और फिर से हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, या अदरवाइज आप 2x y को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते थे या फिर y डैश को सेकंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे 2x को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ और y डैश को सेकंड फंक्शन। सो आई जस्ट डू द डिफरेंशिएशन, 2x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y डैश। सो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन y, डेरिवेटिव ऑफ y डैश इज y डबल डैश प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट? y डैश, दिस y डैश इज एज इट इज। आई सपोज क्लियर, प्लस उसके बाद अभी 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 यहाँ पे लिखा और सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, दैट इज y डैश, ओके, ये भी क्लियर है। देन y स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी निकाला था, दैट इज 2y एंड y डैश। इट इज सिंपल, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 2 और 2 मतलब 4y डैश हो जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, दैट इज 4y डैश। सो वी गॉट ऑल द डेरिवेटिव्स, ओके, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। आपको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलता है, बिकॉज एट x इक्वल्स टू 0 हम वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं ही। तो मैं यहाँ पे पहले पुटअप करता हूँ x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ मैंने अगर x इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो ये तो टर्म ऑलरेडी 0 हो गया, ओके, 0 मल्टीप्लाई टू एनी टर्म इज 0। उसके बाद अब यहाँ से निकालेंगे, दिस गिव्स द y ऑफ 0, बट y ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ? इट इज व्हाट? 1, तो उसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 1। सो आंसर of y dash of 0 is what? 1/2. So that is value of y dash at x equals to 0 is just 1/2. सिंपल है। वैसे फिर हम यहाँ भी x equals to 0 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव से हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, x is 0 यहाँ पुटअप किया, ये टर्म तो चले जाएगा, फिर y of 0 ये 1 है, अभी मैंने आपको बताया, y dash of 0 हमने अभी निकाला, दैट इज 1/2, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगेन दैट y of 0 यहाँ पुटअप कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देंगे, y डबल डैश का वैल्यू आपका 1 आता है फिर, ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर सेम यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सभी वैल्यूज, y 0, y डबल डैश 0 अभी जो निकाला, देन y डैश 0, x इज 0, मतलब ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, दिस इज व्हाट? y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको देखिए इस तरह से मिलता है वैल्यूज, y डैश ऑफ 0 का वैल्यू 1/2 अभी निकाला था,
y डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 है, ओके। और मैंने यहाँ पे एकदम डिटेल से लिखा हूँ कि आप समझ भी सकते हैं कि कैसे वैल्यूज निकाली जाती है। इट इज सिंपल टास्क, सो आई विल नॉट एलोबरेट मच मोर। उसके बाद देन y ट्रिपल डैश एट 0, x इक्वल्स टू 0 हम निकालते हैं, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन कंप्यूट इट, and after computing we get it is 9/4 as the answer of y double dash of 0. Now we substitute all these values, that is y of 0, y dash of 0, y double dash of 0 and y triple dash of 0 in our Taylor series formula. This is our Taylor series formula. हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा था उसमें आपको 4 टर्म्स निकालने थे सॉल्यूशन में, तो 4 टर्म्स हमको मिल सकते हैं डेफिनेटली अगर हमने ये सीरीज फॉर्मूला लिखा, बिकॉज चारों टर्म्स जो है जीरो नॉन जीरो है यहाँ पे। y0 इज नॉन जीरो, y डैश ऑफ 0 इज नॉन जीरो, y डबल डैश ऑफ 0 इज नॉन जीरो एंड y ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज नॉन जीरो। अगर जीरो रहता तो हमको एक और डिफरेंशिएशन करना पड़ता था और बाद में x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी अगर कोई भी टर्म्स यहाँ पे जीरो आ जाता था, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y0 1 है, आपको पता है ऑलरेडी दिया हुआ है। y डैश ऑफ 0 देखो 1/2, y double dash of 0 it is 1, y triple dash of 0 is what 9/4. It is simple, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 1/2 हियर, इट इज 1, दिस इज 9/4, ओके। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, x²/2 लिख देंगे, इसको x/2, सो वी गॉट दिस सीरीज सॉल्यूशन अप टू द 4 टर्म्स, ओके। 1 plus x/2 plus x²/2 plus 3x³/8 plus it goes so on. So this is the required series solution by using the Taylor series method of a given differential equation. But अगर आप एक चीज देखेंगे, आपको एक और चीज पूछा हुआ है, that is find out the here this quantity, find y of 0.1. प्रॉब्लम में ये भी पूछा हुआ है आपको, ओके। तो हमको अभी y of 0.1 निकालने के लिए आपको सोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। हमारा जो सोल्यूशन है उसमें मैं x इक्वल्स टू 0.1 पुटअप करूंगा, तो आई विल गेट y of 0.1 देन, ओके। अगर मैं 0.1 पुटअप करता हूं, सो वी विल गेट हियर एज दिस क्वांटिटी, x की जगह पुटअप किए 0.1, 0.1 स्क्वायर, 0.1 क्यूब, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो दैट विल बी अवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल्स टू 0.1। अब देखिए हम इस सामने के टर्म्स यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं हम सामने के टर्म्स, देखिए बिकॉज दैट विल टेंड्स टू 0। कैसे टेंड्स टू 0? जैसे अगर हम देखते हैं 0.1 का स्क्वायर कितना आता है 0.01। अगर मैं 0.1 का क्यूब लिखता हूं, सो दैट विल बी 0.001। देन इट इज 0.1 टू द पावर 4 अगर हम लिखते हैं, दैट इज 0.0001, ओके। एंड विच वी कैन टेक एज नियरली इक्वल्स टू 0 बिकॉज डेसिमल के बाद 3 0 आ रहे हैं। अगर मैं 0.1 टू द पावर 5 लेता हूं तो और छोटा हो जाता है क्वांटिटी, 0.00001, अगेन नियरली इक्वल्स टू 0, ओके। सो इस तरह से जो सामने के टर्म्स है दैट इज टू द पावर 4 के बाद के सब हमारे क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। सो अगर टेंड्स टू 0 तो हम उसको हटा देते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल टर्म्स है हमारे पास वो। और उसके बाद आई कैन अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन of y at x equals to 0.1 as 1.055375. So this is the solution which is correct up to it is 6 decimal places. देखिए 1 2 3 4 5 6 decimal point हमारे पास है decimal के बाद, therefore the solution is correct up to the 6 decimal point. या अदरवाइज अगर 4 decimal point बोला है, 3 decimal point बोला है, मतलब आपको पॉइंट के बाद वैसे 3 या 4 टर्म्स लेने हैं। अगर 4 decimal point बोला तो दैट टाइम आपको जो चौथा डिजिट है उसको राउंड अप कर लेना है। फिर दैट इज देखिए यहाँ पे 7 था तो हमने इसको 3 को क्या कर लिया, इट इज 4। अगर 5 और 5 से ग्रेटर नंबर है तो हम उसको 1 से इंक्रीज करते हैं, या 5 से लेस है तो हम उसको एज इट इज रखते हैं। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। दिस वी आर गेटिंग द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्यों एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम सामने के टर्म्स यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ओके। ये दिस गोज अप टू इन्फिनिटी बट दैट टर्म्स टेंड्स टू इट इज 0, सो देयरफॉर वी आर लिविंग दैट टर्म्स, ओके। So which is the required solution by using the Taylor series method, okay. So just recap it, what we have seen and how to solve the example on the Taylor series. That is, we will see the working procedure now. So first of all what we do, I just write down the given differential equation as y dash equals to f of xy. ऐसा लिख दिया बिकॉज dy by dx में दिया हुआ रहता है, तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, y dash equals to f of xy. Then just find out the successive derivatives, that is y double dash, y triple dash, then the derivative for the derivative likewise as per the requirement of the terms in the solution, where some derivatives calculate करते हैं. Now after that we calculate all the derivatives values at x equals to 0. That is, we find y dash of 0, y double dash of 0, y triple dash of 0. Suppose it is ये clear है अभी, I suppose, okay. Now further just use the formula
एंड सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। y ऑफ 0 इज ऑलरेडी गिवन टू यू, और ये जो वैल्यूज है y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, y ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो दैट वी विल गेट दैट इज सीरीज सॉल्यूशन फॉर दिस टेलर सीरीज मेथड। और अगर एंड आफ्टर दैट इफ इट इज आस्क्ड टू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट में भी 0.1 0.2 आपको बोल सकते हैं, सो दैट टाइम वी हैव टू सब्स्टिट्यूट the value of x as 0.1 and 0.2 to get the numerical solution for by using that Taylor series. So whatever the series that we have obtained, वहां पे आपको ये values put up करनी पड़ेगी. So this is all about the Taylor series, and this is the example, that is exercise example, the 7 example I have given to you. आप इसका screenshot ले सकते हैं, आप इसको solve करके देखिए. These are the frequently asked question and the famous question in the Taylor series. एंड आपको अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, और वहां पे मैं डाउट्स क्लियर करने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा मैं, ओके, एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट करस्पॉन्डिंगली एज वेल. एंड नाउ एट लास्ट आई विल से इट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई जस्ट पोस्टेड अ लिंक हियर. वो लिंक प्लेलिस्ट है न्यूमेरिकल मेथड का, उसमें भी आप को अलग अलग टॉपिक्स दिख जाएंगे, वो आप टॉपिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको और वीडियोस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. यू कैन गो टू दैट लिंक्स एज वेल अगर आपको वो चाहिए तो. थैंक यू वेरी मच.